Business Regulatory Framework subject. We have started with Unit 2, deals with Companies Act 2013. Basically, we have completed in Companies Act 2013 with history and introduction of companies and Company Act. Then we have covered the important definition of company, what is a company, its features. Then we have overview on companies, types of companies, that is, including various types of companies, means what are the new patterns of companies are introduced in Companies Act 2013. We had overview also of that. Then we have also covered small topics related with like illegal association, dormant company, associate company. Today we will cover one more type of company, which is the most important type of company, and it enjoys special rights. It has its special exemptions. What are the special advantages that a private company is getting? That is what we are going to discuss in today's session. The most important topic of Unit 2 is what we are going to discuss today related with private companies. So what type of question at university level is asked to you? Let's see. They can ask you what is a private company, or they can say define private companies. State its features, they can add in the question. And in addition of that, they can also add, discuss the special privileges or exemptions of private companies, or what are the advantages of commencing private companies. In that sense also they can ask. So let us try to cover in today's session. We will try to understand the definition of private company. We will have the features, or we can say characteristics of private company, and what are the added advantages of opening a private company in place of public company. We will have a comparative analysis about the advantages of opening private company. So let's have first the definition of private company. What are private companies? Let's see. As per section 2, subsection 68 of Companies Act 2013, it defines a private company. So what are private companies? Private company means a company having a minimum paid up capital of 1 lakh rupees. Minimum paid up capital, share capital of 1 lakh rupees, or it may be higher, or as such higher paid up share capital as may be prescribed. So the very basis of private company is based on the paid up share capital value. कि प्राइवेट कंपनी आप कब मान लोगे सर, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपया हो या उससे ज्यादा हो. कम से कम 1 लाख, उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपीज को होनी चाहिए. And which by its articles means the rules and regulations of the company are kept in articles of association. So these are mandatory for a private company to prepare articles of association. So that articles must include the following 3 points. कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब फ्रेम करती है तो इन 3 चीजों का उल्लेख उसके अंदर होना चाहिए रिलेटेड विद प्राइवेट कंपनीज एज पर इट्स डेफिनेशन. प्राइवेट कंपनी के पास ये अधिकार है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. रिस्ट्रिक्शंस रख सकती है, जो भी मेंबर्स बन रहे हैं उन मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखना हो तो रख सकते हैं, दैट दे कैन नॉट इजीली ट्रांसफर द शेयर्स. तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखा जा सकता है अबाउट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. नंबर 2, क्या उल्लेख और हो सकता है आर्टिकल्स में, क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200.
Maximum number of persons who can become the member in private company is 200. 200 से ज्यादा सभ्य संख्या नहीं होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी। इसका उल्लेख भी आर्टिकल में करना है, इसकी प्रोविजन भी आर्टिकल में करनी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये भी डालना है। और तीसरी चीज है कि कहीं से भी कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करना। Means prohibits any invitation to the public to subscribe for any security of the company. प्राइवेट कंपनी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आप कैपिटल पब्लिकली नहीं मांगोगे। कैपिटल आएगा कहाँ से? प्राइवेट कंपनी के पास से। जो मेंबर्स बनना चाहते हैं वो कैपिटल है। आपने जनता से 1 रुपया लेना नहीं, तो इस पे प्रोहिबिशन है। ठीक है, इस पे प्रोहिबिशन रखा गया है, स्ट्रिक्टली मना है, यूं समझ लीजिए। पब्लिक कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जनता के पास से शेयर कैपिटल नहीं मांग सकेगी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को कोई इन्विटेशन नहीं दे सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी, मे बी शेयर, मे बी डिबेंचर, मे बी बॉन्ड्स, इट मे बी पब्लिक डिपॉजिट्स। कुछ भी आपने जनता के पास 1 रुपया लेना नहीं। जो अरेंजमेंट करनी है आपने मेंबर्स के पास, जो मेंबर बनना चाहता है प्राइवेट कंपनी का, उसे ही कह देना है कि भाई आप कैपिटल लेके आओ तो मैं आपको मेंबर, आप मेंबर बन सकते हो। बात। तो ये 3 चीजों का उल्लेख प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होना चाहिए कि शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस रखना हो तो प्राइवेट कंपनी रख सकती है। मैक्सिमम नंबर की लिमिट दर्शा देनी है, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। तीसरा, पब्लिकली कोई इन्विटेशन नहीं देना है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। एक अमेंडमेंट है 2015 का, एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल which was 1 lakh rupees of a private company has been removed. आज के ज़माने में ये लिमिट अब नहीं रही है, लेकिन जब 2013 का कंपनी एक्ट आया था उसमें डेफिनेशन में ये उल्लेख किया गया है, इसलिए डेफिनेशन जब जो बनी थी उसके हिसाब से हमने यहाँ रखी हुई। लेकिन लेटेस्ट रूल ये कह रहा है कि अब 1 लाख रुपीस की जो मर्यादा थी वो ऐसी कोई मर्यादा मिनिमम पेड अप कैपिटल जैसा कुछ रहा नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए नहीं है। आफ्टर डेफिनेशन, अब आगे थोड़ा और डेफिनेशन के अंदर जो छोटी छोटी बातें थी उसका थोड़ा हम वर्णन देख लेते हैं। Where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, where 2 or more persons यानी 1 से ज्यादा व्यक्ति, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 1 या 1 से ज्यादा शेयर जॉइंटली परचेज किए, they shall for the purpose of membership will be treated as single member. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने जॉइंटली शेयर परचेज किए हो तो उसे सिंगल मेंबर माना जाएगा। जब हम मेंबरशिप काउंट कर रहे हैं ना कि मैक्सिमम 200 बंदे होने चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन में, उसकी काउंटिंग में गड़बड़ ना हो, इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अगर कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, 1 शेयर परचेज कर रहे हैं या 100 शेयर परचेज कर रहे हैं, लेकिन जॉइंटली अगर परचेज करें तो उसे एक ही मेंबर माना जाएगा। Any 2 person or more persons can join hands to register a private limited company. Minimum number of members कितने होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो जय और वीरू यानी 2 खिलाड़ी होने चाहिए, एक्स और वाई। कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। उससे ज्यादा हो सकते हैं कि भी लिमिट रखी गई है, आगे देख सकते हैं। हाउएवर इट्स मैक्सिमम मेंबरशिप शुड नॉट एक्सीड 200। 200 से ज्यादा संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ 200 से ज्यादा संख्या बढ़ गई तो
तो ये प्राइवेट कंपनी को एक तरीके से इलीगल एसोसिएशन माना जा सकता है। द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज who hold shares in a private company shall not be included in the number of members. अब जो ये 200 जो काउंटिंग करना है उसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज का समावेश नहीं होता है, उनको ध्यान में नहीं लेना है। एम्प्लॉइज है और मेंबर्स बने हुए हैं, ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं कंपनी में और मेंबर बने हुए मीन्स शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के, तो उन्हें 200 की काउंटिंग में ध्यान में नहीं लेना है, भले फिर पुराना एम्प्लॉय हो या प्रेजेंट एम्प्लॉय हो। इन शॉर्ट एम्प्लॉयज कोई भी स्वरूप के हो उनको काउंटिंग में ध्यान में नहीं लेना है एक्सेप्ट डायरेक्टर। डायरेक्टर को काउंटिंग में लिया जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्राइवेट लिमिटेड शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ कंपनीज नेम। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हमें कैसे पता चलेगा? उसकी सरनेम देखकर। कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग किया गया होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग जहां हुआ होगा कंपनी के एंड के नाम के अंत में, तब आपको वहां से पता चल जाएगा ये प्राइवेट कंपनी है। A private limited company may have its own articles of association. प्राइवेट कंपनी के खुद की अपनी बनाई हुई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो सकती है, यानी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जो वो बना सकती है, फॉलो करेगी। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ये फ्रेम कर सकती है, और इन्हें छूट है और भी जो नियम वो अंदर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट इट शुड बी रीजनेबल। In view of the aforesaid definition, ऊपर जो हमने अभी आगे जो हमने डेफिनेशन दी थी उसमें तीन चीजें बाहर आती है। A private company must in its article जब प्राइवेट कंपनी फ्रेम करती तो इन तीन चीजों का उल्लेख होना चाहिए जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था। Incorporate the said restrictions on transfer of shares। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रखना है, प्राइवेट कंपनी रखती है नॉर्मली। लिमिटेशन रिलेटेड विद मैक्सिमम मेंबर्स, 200 से ज्यादा संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, वो लिमिट का भी उल्लेख कर देना है। एंड प्रोहिबिशन फॉर इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक से 1 रुपया लेना नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन के लिए इन्विटेशन नहीं देना है कि कंपनी शेयर्स बार इशू कर रही है, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, कैपिटल दे तो हम बिजनेस स्टार्ट करें। कैपिटल पब्लिकली लेना ही नहीं, प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं, ध्यान रखना है। अब चलते हैं फीचर्स, यहाँ कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी हमने चर्चा की, अब कुछ बातें बार बार रिपीट होगी तो हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। A private company is required compulsorily to limit through its articles the number of members to 200, taking joint holders as single member and also not counting present or past employees who are members। 200 की लिमिट रखनी है और ये लिमिट का उल्लेख आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कर देना है। कंपनी में ये खास दर्शाना है अपने आर्टिकल्स में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में। जॉइंट होल्डर्स को हम सिंगल मेंबर मानेंगे और जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज होंगे उन्हें मेंबर्स की काउंटिंग में से इग्नोर किया जाएगा, ध्यान में नहीं लिया जाएगा। It has been observed that directors are not considered to be employees of the company. Thus, if they are the members of the company, they shall be counted. That is no exemption from counting of directors. डायरेक्टर्स को कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं माने जाते हैं एक तरीके से, वो सेवा दे रहे हैं और सेवा की जगह पे मेवा मिलेगा उनको, और मेवा क्या होता है? रेम्यूनरेशन, फीस कहते हैं जिसे एग्जैक्टली। अगर वो मेंबर बने हैं तो उनको काउंट किया जाएगा, लेकिन कंपनी के जो अन्य एम्प्लॉयज हैं प्रेजेंट या पास्ट, उनको मेंबर की काउंटिंग में से बाहर रखा गया है, उनको 200 की काउंटिंग में ध्यान में नहीं लेना है। लेकिन डायरेक्टर्स अगर मेंबर बने हैं तो उन्हें काउंटिंग में ध्यान में लेना है एज पर रूल्स।
तो ये हो गया पहला पॉइंट यहाँ पे तमाम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैक्सिमम के बाद आ रहा है मिनिमम लिमिट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? आपने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 2% मौजूद होंगे तो ही आपका ये सपना साकार हो पाएगा। There should be at least 2 persons to form a private company. कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सके। अकेले अकेले कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती, कम से कम 2 व्यक्ति की दरकार है। For forming a private company, 2 or more persons are required to subscribe their names to the memorandum of association. अब 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन it is considered as one of the primary document, basic document, foundation document of the company, जिसके बेसिस पे कंपनी की रचना होती है। इसमें कंपनी की A to Z डिटेल्स आपको मिल जाती है, जैसे नेम से, नाम से जुड़ा हुआ यानी कि नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, एसोसिएशन क्लॉज होता है कि कितने सभ्य है, इनका नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है, कितने सब्सक्राइबर बने हैं, कितने यानी मेंबर्स बने हैं, कितने शेयर्स परचेज किए इन लोगों ने, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएगी। कंपनी का नाम क्या है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे लोकेट होगी, हेड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या करने वाली है, वगैरह वगैरह। Any person who is competent to contract can be a subscriber. मेंबर कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, अगर वो कॉम्पिटेंट बंदा है तो वो मेंबर बन सकता है। कॉम्पिटेंट बंदा क्या होता है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, that who is competent to contract, the person who is of major age is competent to contract, who is of sound mind is competent to contract and not disqualified by any law is competent to contract। तो वो बंदा जो कॉम्पिटेंट है वो सब्सक्राइबर बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी कि कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, और मेंबर्स की डिटेल अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एसोसिएशन क्लॉज में आपको इसकी डिटेल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा फीचर, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या शेयर्स ट्रांसफर करने हो तो आसान काम है। आपने शेयर परचेज किए और अब आप शेयर बेचना चाहते हैं तो क्या आप बेच सकते हैं? क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस रखे जा सकते हैं, कोई रोक टोक रखी जा सकती है, कोई नियंत्रण रखा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, प्राइवेट कंपनी ये नियंत्रण रख सकती है, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका उल्लेख कर सकती है। A private company has to contain the specific restriction, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, रोक टोक है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, so as to prevent anybody acquiring shares of the company by transfer and thereby defeating the very objective of promotion of the company as a private company। छोटा सा रेस्ट्रिक्शन रखना हो तो प्राइवेट कंपनी रख सकती है। रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं होता है, दिस रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। रिस्ट्रिक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है कि आज मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज किए, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि भाई आप 6 महीने के लिए या साल के लिए आप ये शेयर्स ना बेचें, ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन का। रिस्ट्रिक्शन रखा है, बैन नहीं रखा है, कोई प्रोहिबिशन नहीं रख दिया है कि भाई आप आजीवन ये शेयर्स नहीं बेच सकते, ऐसा कोई बैन नहीं रख दिया है। यानी कोई एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद के आपने कोई गुनाह कर दिया है ऐसा रियलाइज नहीं करवाएंगे। It is important to note that this restriction is relevant only in case of private company having share capital। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो शेयर कैपिटल के बेसिस पे अगर उसकी रचना हुई है तो ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ इसी स्वरूप की कंपनी को फॉलो होगी। It is not applicable in case of companies incorporated as a purely guaranteed company। दो स्वरूप की प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी
हैविंग शेयर कैपिटल, ये एक स्वरूप हो गया। दूसरा स्वरूप हो गया प्राइवेट कंपनी हैविंग गारंटी। ठीक है, या तो शेयर कैपिटल के हिसाब से रचना हुई होगी या तो मेंबर्स ने गारंटी दी होगी। तो ये दो स्वरूप की कंपनी होती है। ये जो प्रोविजन है ये किसे लागू होता है? सिर्फ ऐसी कंपनियों को जो प्राइवेट कंपनी है और उनकी रचना शेयर कैपिटल के बेसिस पे हुई है, तभी उनको ये शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तभी तो आप रख पाओगे जब आपने शेयर कैपिटल प्राप्त किया होगा, मेंबर्स के पास से शेयर इशू करके कैपिटल प्राप्त किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The articles of association may provide that a shareholder shall have to offer the share he intends to transfer as a specified group, for instance any of the existing shareholders. आर्टिकल्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन किस स्वरूप का हो सकता है कि भाई अगर आपने शेयर ट्रांसफर भी करना है तो आप किसे ट्रांसफर करोगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के मेंबर्स बने हुए हैं, आप उनको शेयर ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप बाहर की व्यक्ति को भी शेयर ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्टर से परमिशन लेनी होगी। If the shareholder fails to get acceptance of his offer to transfer shares in terms of the provision of the articles, he would then be free to offer the shares to any other person, and the directors ordinarily will be obliged to effect the transfer. आपने जो प्रोटोकॉल आपको दिया था, जो प्रोविजन किया गया आर्टिकल्स में, वो फॉलो करना है। अगर आपने शेयर्स बेचने भी है तो आप सबसे पहले किन्हें ऑफर करेंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जो प्रेजेंट मेंबर्स है, पहले उन्हें ऑफर करेंगे। एक्स अपने दूसरे पार्टनर से, वाई पार्टनर से कह सकता है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं ये शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? वाई बोल दे हाँ खरीदूंगा, तो बात खत्म हो जाती है। मगर वो अगर मना कर दे तो, और दूसरा कोई बंदा हो ही ना, तो फिर उसे वो किसी और थर्ड पार्टी को बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, इफ ही इज हैविंग एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। और इसके लिए डायरेक्टर्स भी एग्री करेंगे, करना पड़ेगा। इट इज ऑर्डिनरीली इट विल बी ऑब्लिज्ड टू अफेक्ट द ट्रांसफर। घर के सदस्य दूसरे सदस्य शेयर परचेस नहीं करें तो आपको बाहर बेचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इनवाइटिंग पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आपने 1 रुपया भी पब्लिक से लेना नहीं है, खुद ही अरेंजमेंट करनी है। आप कैपिटल कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो मेंबर्स बनना चाहते हैं उनके पास से आप कैपिटल प्राप्त करेंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति मिलके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और मिनिमम 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है दोनों 50,000 ईच मेंबर विल ब्रिंग टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी। The articles of a private company must prohibit an invitation to the public to subscribe for any shares, debentures or any other securities of the company. Prohibition रखना हो तो रख सकते हैं कि जो भी बंदा प्राइवेट कंपनी में मेंबर बनना चाहता है उन्होंने कैपिटल लाना होगा, यहीं से कंपनी को कैपिटल प्राप्त होता है। अगर मेंबर ही कैपिटल लेके आ रहा है तो और पैसों की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पब्लिकली जाने की भी जरूरत नहीं है। हमने पब्लिक के पास से कोई भी सेंस में, कोई भी स्वरूप में 1 रुपया लेना नहीं है। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट publicly for issue of shares, for issue of debentures or any other securities. In practical terms, this requirement shall mean that a private company must not make public issue or publish any advertisement inviting investments or resort to any other method of inviting public investment in its shares, debentures, etc. 1 रुपया पब्लिकली लेना नहीं है, कोई इन्विटेशन नहीं देना है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी है। जो कुछ करना है अंदर अंदर करना है, जिसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी कैन ओनली कलेक्ट इट्स कैपिटल थ्रू प्राइवेट अप्रोच। प्राइवेट अप्रोच का मतलब क्या होता है? जो मेंबर बनना चाहता है उनको कह देना है कि भाई इतने रुपए टोटल चाहिए हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम सब मिलके, मान लीजिए 5 मेंबर अगर बनना चाह रहे हैं टोटल, तो 5 मेंबर बाई 20,000 ईच लेके आएंगे तो 1 लाख
इकट्ठा हो जाएगा तो एटलीस्ट हम इनिशियल स्टेज पे इतने से हमारा काम शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से प्राइवेट कंपनी की रचना होती है। फ्यूचर एक्सपांशन के लिए आप पब्लिकली जा सकते हैं, लेकिन इनिशियल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी पॉइंट है फीचर का यूज ऑफ वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग कंपनी के अंत में, नाम के अंत में होता है। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और एनी एक्सेप्टेबल एब्रिविएशन देयरऑफ सच एज, कभी कभी कुछ कंपनी के अंत में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ये भी एक्सेप्टेबल है, मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस कंपनी के नाम के अंत में अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ दिखेगा, भले शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो या फुल फॉर्म में लिखा हो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये प्राइवेट कंपनी है। तो दोस्तों अभी हमने जो चर्चा की है वो है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस बाकी। क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें था व्हाट आर प्राइवेट कंपनीज एंड एक्सप्लेन इट्स स्पेशल प्रिविलेजेस। फीचर्स तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड किए अंदर। अगर आपको फीचर्स पूछते हैं तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। फीचर्स पूछे तो ही लिखने हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने चर्चा जरूर की है। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, मेन पॉइंट पे। स्पेशल एडवांटेजेस क्या है, स्पेशल एग्जम्पशंस क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस क्या है, प्राइवेट कंपनी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, आप क्यों इंस्पायर होंगे कि मैं प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करूं, क्यों ना मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट करें या कोई और स्वरूप की कंपनी स्टार्ट करें। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आप एनकरेज कब होंगे, इंस्पायर कब होंगे, तो उसकी क्या खासियत है, क्या एडेड एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एग्जम्पशंस मिलती है प्राइवेट कंपनी, क्या एंजॉय करती है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी चर्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो फोकस करना। Both private and public companies are regulated by the provision of the Companies Act 2013. किसी भी स्वरूप की कंपनी हो उसे कौन सा एक्ट लागू होगा सर, कंपनीज एक्ट 2013। However, certain provisions of the act do not apply to a private company. प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रोविजंस, जो कंपनी एक्ट की कुछ प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होती, लागू नहीं होती, यानी ये उसके लिए फायदा है, छूट मिल गई है समझ लीजिए। These are the privileges which a private company enjoys over the public company under the act. तो जहाँ जितनी जितनी हमें छूट मिली हो, प्राइवेट कंपनी को जितनी छूट मिली हो उतना ही उनको बेनिफिट है कंपेयर्ड विद पब्लिक कंपनी, कंपेयर्ड विद पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी से ज्यादा फायदा प्राइवेट कंपनी को मिलता है, ये यहाँ पे इस तरीके से साबित होगा। कैसे साबित होगा, तो हमारी चर्चा के हिसाब से साबित होगा। तो सबसे पहला स्पेशल एडवांटेज क्या है, स्पेशल प्रिविलेज क्या है प्राइवेट कंपनी के लिए, तो सर नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आपने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी हो तो कम से कम 7 खिलाड़ी चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए, जो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद सोचिए ना कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी हो तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। 2 व्यक्ति ढूंढना आसान है या 7 व्यक्ति ढूंढना आसान है, ये आप खुद सोचिए। तो पहला एडवांटेज क्या हो जाता है, प्राइवेट कंपनी खोलनी है 2 बंदे इकट्ठा कर लो, प्राइवेट कंपनी खोल लो। लेकिन पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो 7 खिलाड़ी ढूंढने पड़ते हैं एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनी से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला एडवांटेज है नंबर ऑफ मेंबर्स। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा प्रिविलेज क्या है, काइंड्स ऑफ शेयर्स। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर्स दैट आर इशूड और व्हिच कैन बी इशूड बाय द कंपनी, प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 43 क्या कहना चाह रहे हैं, अ प्राइवेट कंपनी मे इशू शेयर्स अदर देन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इफ सो प्रोवाइडेड इन इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर इसका उल्लेख कर दिया जाए मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो किसी भी स्वरूप के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, ये चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, बोनस शेयर हो, राइट शेयर हो या अन्य स्वरूप के कोई भी शेयर। थर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस देखते हैं, इशूइंग राइट शेयर्स। जैसे अभी हमने देखा काइंड्स ऑफ शेयर्स, उसमें से एक आ गया यहाँ पे इशूइंग राइट शेयर्स एज पर सेक्शन 62। In case of issue of right shares as against minimum period of 15 days, a private company may choose its offer before that.
private company may close its offer before that. It means that it is not required to keep its right shares issue open for minimum period of 15 days. मान लीजिए XYZ कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करने हैं और मिनिमम ड्यूरेशन 15 डेज का रखा है, ऑफर क्लोज हो जाएगी, 15 डेज का टाइम लिमिट दिया है मेंबर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और मान लीजिए 10 डेज में ही सारे राइट शेयर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, सारे मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर 15 दिन तक वेट क्यों किया जाए? 11वें दिन ऑफर क्लोज कर दो। तो 15 डेज तक की जो प्रोविजन की गई है, मिनिमम ड्यूरेशन की जो प्रोविजन की गई है, वो फॉलो करने की भी वहाँ जरूरत नहीं है। 15 दिन का काम अगर 10 दिन में हो जाए तो 11वें दिन वो ऑफर क्लोज कर दो। ये छूट मिली हुई है प्राइवेट कंपनी को। उन्होंने वेट नहीं करना है 15 दिन तक। 7 दिन में अभी अगर काम निपट जाता है तो 8वें दिन ऑफर क्लोज कर सकता है। प्राइवेट कंपनी को ये छूट मिली हुई है, एडेड एडवांटेज है ये। पॉइंट नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज। इश्यू ऑफ शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को अगर शेयर इशू करने हैं तो उसकी प्रोसेस आसान है या मुश्किल है? फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज विच आर नोन एज or which can be termed as employee stock option scheme, or we can say plan, ESOP, ESOS या ESOP। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है ये एम्प्लॉयज के लिए होती है, और इसके अंदर कंपनी चाहे तो अपने ही एम्प्लॉयज को ये एक बेनिफिट दे सकती है दैट दे कैन इशू फॉर, दे कैन गो फॉर शेयर्स सब्सक्रिप्शन। अब ये स्कीम अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहती है इस स्कीम की, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा तो चलेगा एज अगेंस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कंपनी का जो प्रोसीजर है वो आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 50% बंदे एग्री होने चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करना है तो ये इससे तो हमारे एम्प्लॉयज खुश होंगे, उन्हें भी थोड़ा पार्टिसिपेशन जैसा लगेगा, अपनापन लगेगा, चलिए तो इनको इशू कर दिया जाए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या होता है? 50% जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में 50% मेंबर्स एग्री करते हैं, अपना कंसर्न देते हैं, ठीक है ये स्कीम हम देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देंगे। जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, 50 से ज्यादा यानी 75% लोग रेडी होने चाहिए हाँ बोलने के लिए, कंसर्न देने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जितना डिफिकल्ट है, उतना ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना इजी है। इसलिए ये प्रोसेस भी प्राइवेट कंपनी के फेवर में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज इजी टू पास एज कंपेयर्ड विद स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रोसीजर आसान है, कहने का अर्थ ये। पॉइंट नंबर 5, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। Private company have been allowed to accept deposits from members under Section 73 up to 100% of its paid-up capital and free reserves, provided they inform registrar of companies, that is the person who provides you license to start a company. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो बंदा है जो आपको लाइसेंस देता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं मेंबर्स से, जो मेंबर बनना चाहते हैं उनसे जो भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 100% स्वरूप में हो सकता है। मीन्स आपने डिसाइड किया हो कि हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमारी टोटल कैपिटल हम 10 लाख रखेंगे, तो ये 10 के 10 लाख का आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। और इसके लिए आपने रजिस्ट्रार को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना है कि भाई हम 10 लाख की कैपिटल से अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और ये 10 लाख का कैपिटल इतने लोगों ने हमें दिया है और हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमने हमारे वेल विशर को दे देनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दे देनी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज ओनली 2 इन अ प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जबकि पब्लिक में एक संख्या ज्यादा है, 3 कम से कम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट के अंदर आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम एकदम आसान है, सरल है, इजी है, ज्यादा तकलीफें नहीं है।
Independent directors. Independent directors, a private company is exempted from the requirement of appointment of independent directors as per section 149. कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं, प्राइवेट कंपनी को इसमें से छूट मिली हुई है, लेकिन पब्लिक कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी है। डायरेक्टर्स रिटायरमेंट, क्या प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कंपलसरी उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है? नो सर, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन एज टू proportion of directors liable to retire by rotation do not apply to a private company. प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो डायरेक्टर बना है उसे रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट बाय रोटेशन यानी 2-3 में से 2 बंदे रिटायर हो जाने चाहिए हर 3 साल में या 5 साल में, ऐसा कोई रोटेशन सिस्टम प्राइवेट कंपनी में नहीं है। पब्लिक कंपनी में कि हर 3 से 5 साल में जो 3 बंदे डायरेक्टर बने हैं उसमें से कम 2 बदलने चाहिए, तो वहां पे ये सिस्टम है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, छूट मिली हुई है, ये स्पेशल प्रिविलेजेस पे आ जाता है। However, it does not mean that they cannot be removed throughout their life or life of the company or before the expiry of the period for which they are appointed. हाँ, किसी डायरेक्टर ने कुछ गड़बड़ की है, गलत काम किया है, कंपनी के अगेंस्ट काम किया है, मेंबर्स के अगेंस्ट काम किया है, कंपनी को नुकसान हो ऐसा काम किया, तो फिर उसे अगर रिमूव करना है तो फिर वो पॉसिबल है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार डायरेक्टर बन गए तो आप लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर कर देंगे, रिमूवल की भी प्रोविजन। फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, जो भी जगह खाली पड़ी है तो वो जगह को भी फुलफिल करना जरूरी है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ casual vacancies among directors and the duration of the period of office of those so appointed do not apply to a private company. 2 डायरेक्टर्स चाहिए मिनिमम, तो 2 में से अगर एक इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, तो उसकी जगह दूसरे की अपॉइंटमेंट करनी होती है। लेकिन कोई हार्श नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जितना जल्दी हो जाए उतना कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपॉइंटमेंट कर लेनी है, जल्द से जल्द कर लेनी है, ऐसा कोई हार्श रूल नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी की फेवर में रहेगा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो कर पाता है। डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप रख सकता है? नो पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज, whereas he can become a director in maximum 20 private companies provided none of those companies is a public company or a holding or subsidiary of a public company. एक डायरेक्टर या तो 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है या तो फिर वो मैक्सिमम 20 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अगर वो 20 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है तो उसमें एक भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सोर्स की कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए as per section 165. नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी। कमिटी है ऑडिट कमिटी, ऑडिट के हम जानते हैं एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स व्हिच आर मेंटेन्ड बाय द कंपनी, financial statements and all that, fund flow statement, all that statements, we can say the annual reports of the companies which are audited by the audit committee. Whether it is needed, whether it is compulsory for private company to maintain such committee, no sir. A private company is not required to constitute any audit committee of the board. जो compulsory नहीं है, optional है। कंपनी चाहे तो अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखना चाहे तो रख सकती है, ना रखे तो भी चलेगा, ऐसा बोर्ड बनाने का कंपल्सरी नहीं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जब बुलाई जाती है तो उसमें जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वो चाहे तो उसमें अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करके वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन वो मीटिंग में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता है, मीटिंग क्यों अटेंड करना चाहता है, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाना है और डिस्क्लोज करना है, डिक्लेयर करना है, फिर ही उसे ये इजाजत मिलेगी
कमीशन मिलेगी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये किसे मिलेगा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो कंपनी को चलाते हैं। Who runs the company? Who are the official person of the company? Sir, directors are the official person of the company. कंपनी चलाने वाले बंदे को कहते हैं डायरेक्टर्स। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। डायरेक्टर्स मे बी फुल टाइम, मे बी पार्ट टाइम, मे बी होल्ड, मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल नेम अगर हम एमडी जिसे कहते हैं अल्टीमेटली। तो इनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो क्या प्राइवेट कंपनी में रेम्यूनरेशन देने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है सर। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है। अगर पब्लिक कंपनी है तो ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं? 11%। नेट प्रॉफिट का 11%, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर पब्लिक कंपनी है और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देना है मैंने डायरेक्टर्स को, ठीक है, तो 11% से ज्यादा नहीं देना है। किसके 11%? नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा आप रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को नहीं देंगे। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी मे पे रेम्यूनरेशन टू इट्स मैनेजरियल पर्सनल बाय सच हायर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और इन द मैनर एज दे डीम इट एज पर सेक्शन 197। 11% से कम देना हो प्राइवेट कंपनी में तो भी चलेगा। 11% से ज्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देना है डायरेक्टर्स को तो भी चलेगा। यानी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट नहीं। फॉरम फॉर जनरल मीटिंग। फॉरम यानी यूँ समझ लीजिए कि एक ज्यूरी है और ये ज्यूरी मिलकर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक पैनल है, पैनल में कितनी संख्या होनी चाहिए जो मीटिंग कंडक्ट करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, अरेंज करेगी, हैंडल करेगी। ये पूरी अरेंजमेंट करने वाली जो कमेटी होती है उसको फॉरम कहते हैं टेक्निकली। तो फॉरम फॉर जनरल मीटिंग, ये कितने मेंबर्स होने चाहिए फॉरम के अंदर, इस पैनल के अंदर, तो वो यहाँ फिक्स है एज पर सेक्शन 103। In case of private company, unless articles provides for a higher number, 2 members personally present shall be the quorum required for the general meeting of the shareholders. 2 members हो सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में वैसे भी मैक्सी लिमिट हमारी 200 की है, तो 200 से ज्यादा संख्या तो बढ़ने वाली नहीं है। तो 200 की फौज को संभालने के लिए 2 जय और वीरू काफी है, मीटिंग को हैंडल कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरम की सभ्य संख्या प्राइवेट कंपनी में कितनी रहेगी? 2 members who can handle the meeting, while in case of public company वहां संख्या ज्यादा हो सकती है फॉरम की। मिनिमम 5 हो सकती है, मैक्सिमम 30 हो सकती है। मिनिमम 5, it may be 15 or it may be 30 members depending on the presence of the members in the meeting। अब देखिए पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उनकी मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जबकि प्राइवेट में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या आ सकती है? 200। तो 200 को हैंडल करने के लिए 2 इनफ है मीटिंग के कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या 1000 है, 1000 या 1000 से कम हो, तो 5 मेंबर का क्वारम होना चाहिए मीटिंग को हैंडल करने के लिए। संख्या बढ़ जाती है, 1000 से 5000 के बीच में हो जाती है, तो वो क्वारम बढ़ जाएगा, 15 का हो जाएगा। और अगर फौज 5000 से बढ़ जाती है, पूरा जिला आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यानी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 5000 प्लस हो जाते हैं, तो फॉरम की जो मैक्सी लिमिट है 30 मेंबर्स को वो मीटिंग हैंडल करनी पड़ेगी एज पर रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, लोन फॉर बाइंग ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए भी, खुद की सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए भी अगर लोन देना चाहे तो दे सकती है। A private company may provide loans for buying of its own shares or other securities. ये छूट भी है प्राइवेट कंपनी को। और आखिरी पॉइंट है लोन टू डायरेक्टर्स। जो कंपनी चलाने वाला बंदा है, जो ऑफिशियल पर्सन है, अगर उसे कभी लोन की रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसे भी मदद करती है। प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड अ लोन और गिव गारंटी
और ऑफर अ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ अ लोन टेकन बाय अ डायरेक्टर। तीन स्वरूप में हेल्प कर सकती है। या तो कंपनी खुद डायरेक्टर को लोन दे रही है, फंडेड असिस्टेंट कहते हैं इसको, यहाँ गारंटी दे रही है, सिर्फ नॉन फंडेड असिस्टेंट कहते हैं, यहाँ पैसे नहीं दे रही है, सिर्फ गारंटी दे रही है। लोन कोई और दे रहा होगा लेकिन कंपनी गारंटर बन रहा है। और ऑफर अ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन टेकन बाय अ डायरेक्टर, यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इस स्वरूप में स्पेशल प्रिविलेजेस है प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के, इतने सारे एडवांटेजेस। तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट स्टार्ट करेंगे या पब्लिक स्टार्ट करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज आर मोर फार बेटर टू स्टार्ट। प्रोसेस भी इजी है, रिक्वायरमेंट इजी है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं, ये रिपोर्ट नहीं बनाना है, वो रिपोर्ट नहीं बनाना है, ये मीटिंग नहीं करनी है, वो मीटिंग नहीं करनी है, ये रिसोल्यूशन पास नहीं करना है, ये जरूरत नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं हमको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने से। थोड़ा हमारा काम आसान हो जाता है और बेनिफिट भी उतना ही ज्यादा